Hey learners, this is Dr. Rishi from the Learners Academy. पिछले दो वीडियोस में अपन ने सीखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाउ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड, बट why to study this particular phenomenon in such a depth? The answer for your question is lying in this particular video. Today we are going to talk about applications of refraction of light. So let us see what we have. So पहले सब, have you ever seen it that when you go to a swimming pool for swimming, जब तक आप पानी में उतरते नहीं हो, पानी remains quite shallow, it looks quite shallow, इतना ज़्यादा deep होगा दिखाई नहीं देता, पर जब आप उसमें कूद जाते हो, then you feel the real depth of the pool. Okay? This is one of the most common examples of refraction of light. Now let us see this theoretically and let us understand the physics behind this. So अभी देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा. सो सबसे पहला एप्लीकेशन वुड बी द रियल एंड द apparent depth. We see it in our real life a lot of times. So for instance, whenever you go to swim in a swimming pool, the surface appears to be risen up. The surface of the swimming pool appears to be risen up. तो ये बहुत crucial है. आपको लगता है कि वो उतना deep नहीं है, but when we actually dive into the pool, we figure out the actual depth. तो an object in a denser medium, when viewed from a rarer medium, appears to be at a depth lesser than the real depth. This is because of refraction of light. तो ये होता क्यों है? Okay, let's understand it mathematically. तो real depth कितना है मेरा? यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा real depth है. Meaning AO मेरा real depth है. But when I look at an angle, since my angle of refraction जो है वो now this is going to be angle of incidence. Yeah. So in this case, the ray is going from a denser medium to rarer medium. तो ये angle of refraction होगा, ये angle of incidence होगा. तो ये angle of refraction ज़्यादा होगा angle of incidence से, which means that actually कहाँ पर appear होगा? तो ये I की जगह पर actual body appear होगी, पर उसका actual depth कितना है? O है. तो ये जो AI है, that is my apparent depth. Now ये water में हो सकता है, ये glass में हो सकता है. Water में swimming pool is the best example for this kind of an this kind of a phenomena. कई बार even तो इस वजह से क्या होता है, कई बार depth का अंदाज़ा नहीं लगता. Now even people who are doing spear fishing, उनके लिए भी ये important है जानना कि अगर मछली यहाँ पर है actual में, तो they should aim here and not here, क्योंकि मछली उनको दिखेगी यहाँ पर. तो वो सबसे important इसका application है रियल लाइफ वाला. तो अभी देखेंगे कि अभी इसको अपन मैथमेटिकली देखेंगे क्या हो रहा है. वी नो दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल OBN इज इक्वल टू I. AOB इज इक्वल टू OBN इज इक्वल टू I. सिमिलरली AI डैश, तो सॉरी IA डैश and BN dash or BNN dash are parallel, and IC is the transversal. तो ये मेरे को angle of refraction भी मिल जाएगा इधर. तो ये I सेम क्यों है? बिकॉज मेरा I A dash और मेरा N dash N parallel है and मेरा OB ट्रांसवर्सल है. सेम वे IB भी ट्रांसवर्सल है, तो और IC भी ट्रांसवर्सल है. सो आई कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज R. नाउ व्हाट इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल BAO, राइट एंगल यहाँ पर होगा. आई कैन सी दैट sin I इज इक्वल टू, सो sin इज विच रेशियो? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. तो साइन आई मतलब ये हो जाएगा साइन आई, इसका साइन रेशियो लेंगे तो इट इज़ AB अपॉन OB.
and sin r is going to be AB upon BI or IB. But from the definition of the refractive index, उनका refractive index कितना होना चाहिए? It is sin I upon sin R. We have a mu, so m mu A is going to be equal to sin I upon sin R. So it is BA upon OB divided by BA upon IB, giving us IB upon OB, because दोनों reciprocal है, BA cancel हो जाएंगे, तो effectively it would be 1 upon OB divided by 1 upon IB. तो दोनों को reciprocal लेना पड़ेगा और multiply out करना पड़ेगा, तो we'll get it as 1 upon OB times IB upon 1, giving me IB upon OB. Now, refractive index of the medium with respect to air is A mu m, so it is equal to 1 upon m mu A, so it is OB upon IB. So, we can look at it and we can say that, so उनको अपन directly change भी कर सकते हैं because the triangles are similar. दोनों triangle का उनका जो dependence है वो OB upon IB को we can replace it by OA upon OA upon AI. तो इन दोनों की जगह पे ये दो sides use कर रहे हैं अपन, तो we'll get the refractive index as real depth upon apparent depth. तो apparent depth is going to be equal to real depth divided by refractive index. तो जितना बड़ा refractive index उतना ज़्यादा apparent depth दिखाई देगा. So ये काफ़ी crucial है understand करना. तो आगे देखेंगे कि now अब ये shift there. So ये वाले जो ये वाला topic है, इसमें दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं. ईदर दे विल बी आस्किंग अस अपैरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दो तीन में से दो चीजें देंगे, एक पूछेंगे आपको फाइंड आउट करनी है, या फिर दे कैन आल्सो आस्क यू फॉर द शिफ्ट. शिफ्ट कितना हुआ है, तो व्हाट इज द शिफ्ट? द शिफ्ट इज रियल डेप्थ माइनस द अपैरेंट डेप्थ. तो वो कैसे आ जाएगा? तो रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ, तो मेरा रियल डेप्थ इट कैन बी टेकन एज रियल, तो ये अपैरेंट डेप्थ है मेरा, रियल डेप्थ अपॉन तो रियल डेप्थ अपॉन ए म्यू एम. तो रियल डेप्थ को बाहर निकाल लेंगे अपन, तो ब्रैकेट में रह जाएगा ये, इसकी वजह से 1 रहेगा और इसकी वजह से 1 अपॉन ए म्यू एम रह जाएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द शिफ्ट. द शिफ्ट बाय विच द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू रेज to be raised depends on, so it depends on what? The first is the refractive index. Higher the refractive index of the medium, more will be the shift. Dependence of shift on the thickness of the medium. Obviously जितना thick medium होगा उतना ज़्यादा ही shift होने वाला है, because the air the ray is going to bend more for a thicker. तो जो अपने को apparent depth दिखेगा वो ज़्यादा दिखेगा उसकी वजह से, मतलब apparent जो उसके शिफ्ट का साइज रहेगा वो ज्यादा रहेगा. नाउ डिपेंडेंस ऑन वेवलेंथ, द शिफ्ट डिक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड. मतलब मेरा म्यू वी ज्यादा है म्यू आर से, देयरफॉर द शिफ्ट इज मोर फॉर वॉयलेट लाइट देन फॉर माय रेड लाइट इन द गिवन मीडियम. अब ये काफी क्रूशियल है, दो जगहों पर अपन ने देखा है. इससे पहले भी when we talked about prism, और अभी भी रेड लाइट इज शिफ्टिंग लेस, रेड लाइट का डिविएशन भी कम है. दिस इज द रीजन दैट रेड लाइट इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल्स. सो डेंजर सिग्नल्स के लिए रेड लाइट ही क्यों यूज करता है? ये बहुत कॉमनली आस्क्ड गिव रीजन है फॉर बोर्ड्स अक्रॉस. सो वी हैव सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड, सारे के सारे उनको ये एक काफी पसंदीदा उनका सवाल है कि गिव रीजन व्हाई रेड कलर इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल्स. तो क्यों करते हैं? तो ये दो उसके मेजर रीजंस है कि रेड शिफ्ट भी कम होता है और रेड डिविएट भी कम होता है. देन देयर आर अदर 3-4 रीजंस दैट वी कैन हैव व्हिच वुड बी मेंशन्ड इन द लेटर थियोरेटिकल पार्ट्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अपीयरेंस ऑफ बेंडिंग ऑफ अ स्टिक अंडर वाटर. तो जब भी कोई स्टिक को अपन पानी में रखते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक पेंसिल रखी है, तो अगर यहाँ पर देखो तो ये ऐसी बेंड होती हुई नजर आ रही है, तो ये क्यों हो रही है? दिस इज हैपनिंग बिकॉज अगेन
ये अपेरेंट पोजीशन और रियल पोजीशन दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो अपनी आईज कैन फिगर आउट द डिफरेंस। ये बहुत ज़्यादा कूल फैक्ट है क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पर यूज होता है, जैसे कि ये अगला वाला इमेज। ये भाई साहब बैठे हैं एक कांच के स्विमिंग पूल में, तो यू कैन सी दैट हिज हेड एंड हिज बॉडी आर लुकिंग dislocated, but they are not actually dislocated. This entire optical illusion is happening because of refraction of light. अभी ठीक है भाई, अपन ने तो फिश को देख लिया, अगर फिश देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? So now we are looking it with the perspective of the fish, या फिर someone who's there under the water. अभी तक अपन देख रहे थे कि अपन रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम को देखेंगे तो क्या होगा, तो तब क्या हो रहा था, शिफ्ट अपवर्ड्स हो रहा था, मतलब अपेरेंट डेप्थ जो था वो कम दिख रहा था एज कंपेयर टू द रियल डेप्थ। यहां पर एग्जैक्टली उल्टा होगा, यहां पर जो अपेरेंट हाइट है वो ज्यादा दिखेगी एज कंपेयर टू द रियल हाइट। तो अगेन इफ द फिश इज लुकिंग एट यू, यूड लुक टॉलर टू द फिश। ये भी क्वेश्चन है जो कई आई थिंक एक बार आ चुका है इन द बोर्ड एग्जाम्स, दैट व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द पर्सन सीन बाय द फिश, ऐसा कुछ करके था वो डाउट, एंड किड्स वर हैविंग डिफिकल्टी फिगरिंग इट आउट। तो ये डायग्राम उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो अपेरेंट हाइट है वो बढ़ने वाला है इफ वी सी फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेरर मीडियम, सो द ऑब्जर्वर इज इन द डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू द rarer medium. Now ये अभी इसके consequences देखेंगे कि क्या रिफ्रैक्शन की वजह से होता क्या क्या है। तो फर्स्ट स्टार appears twinkling in the sky due to change in the refractive index of the air with temperature. अपना जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर सेम नहीं है हर जगह पर, एज वी गो अप द टेम्परेचर इज लेस, उसका डेंसिटी भी कम हो रहा है, दोनों चीजें हैं, एंड कलेक्टिवली दे मेक द स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग। तो स्टार्स एक्चुअल में ट्विंकल होती है क्या? तो नहीं, अपन देख रहे हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू, इस वजह से वो ट्विंकलिंग हो रहे हैं। सेकेंड, द सन इज सीन अ फ्यू मिनट्स बिफोर इट राइजेस अबव द हराइजन इन द मॉर्निंग, वाइल इन द इवनिंग फ्यू मिनट्स लॉन्गर आफ्टर इट सेट्स। अभी ये थोड़ा सा फनी है बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जिनको आदत है टू चेक आउट, वो जब भी मुहूर्त निकालते हैं तो सनराइज और सनसेट का मुहूर्त दिया जाता है, अभी उसमें 2 मिनट का डिले आता है। वी सी अर्ली सनराइज और अ डिलेड सनसेट। तो सनसेट जो मुहूर्त होगा उससे 2 मिनट बाद ही सन एक्चुअल में सेट हो जाएगा, फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, और जो सनराइज का टाइम है उससे 2 मिनट पहले ही सन एक्चुअल रिजन हो चुका होगा। ठीक, आगे है a coin kept in a vessel and not visible when seen from just below the edge of the vessel can be viewed from the same position when water is poured in the vessel. तो ये भी काफ़ी अच्छी ट्रिक है कि आप कॉइन को अपीयर और डिसअपियर कर सकते हो just by putting in some water in the vessel. Next है, a print appears to be raised when a glass slab is placed over it. तो प्रिंट थोड़ा ऐसा ऊपर उठ के आ जाता है जब उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखा रहता है। ये कई बार कई जगहों पर दिखाया जाता है व्हेन वी हैव टू गिव दैट 3D इफेक्ट टू अ पर्टिकुलर वर्ड। तो उसके ऊपर एक छोटा सा ग्लास का पीस चिपका देते हैं, ग्लास नहीं, कई बार वो एक्रेलिक भी होता है, एंड इट फील्स दैट द लेटर्स आर रेज्ड अप। Now, a piece of paper stuck at the bottom of a glass appears to be raised when seen from above. ये भी उतना ही crucial है। अगर there is a piece of paper stuck at the bottom of the glass तो थोड़ा सा ऐसा लगता है ग्लास के अंदर ही है, but actual में वो ग्लास के बाहर रहता है। Then tank appears to be shallow than its actual depth. ये सबसे कॉमन वाली चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि लोग जाते हैं और देखते हैं कि अरे यार इतना तो डीप नहीं है, तो सीधा सीधा जंप कर देते हैं। जब जंप करते तब ध्यान में आता है काफ़ी डेप्थ है टैंक का। देन अ पर्सन्स लेग अपीयर टू बी शॉर्ट व्हेन स्टैंडिंग इन अ टैंक। ये भी काफ़ी फनी दिखता है।
तो अगले टाइम if you go into the swimming pool and you want to take your friends pictures, please take it when they are standing in the pool. It would become an absolute meme material क्योंकि वो काफी funny दिखता है. So that was about the applications of refraction of light. With this video also I have attached a small worksheet which you can solve. In case you have any doubts, feel free to contact us on the given number or scan the QR code for our WhatsApp. These questions are important. We are preparing for the board exams which are going to come in next 2 months. So I'm wishing you all the best for it. And I would always be there to help you out. If you found this video interesting, give it a thumbs up, like it, share it with your friends, subscribe to our channel. The response that you people give to these videos keeps me motivated to make even more videos. This was Dr. Rishi from the Learners Academy. Thank you.